Okay, good morning all of you. Good morning, sir. So as I told you, from this particular lecture we will be starting the new book for you, that is part B of your syllabus, political theory, and all of you have this book today, I think. Okay, so today in this lecture we will talk about the introduction part of this book, that what is this book, why this book is included in your syllabus, and how it is different for whatever you have studied in your junior classes. Because in the junior classes you are studying SST, and amongst SST you are having one subject, that is civics, a smaller branch of political science, a smaller branch of political science. तभी वहाँ तक हम क्या बोलते हैं, उसको civics बोलते हैं, and from here we call it as political science because it has many branches. If you talk about political science, it has various branches. If you go to the higher studies and you are doing further higher studies in political science, so you will see within political science there will be many other branches like foreign international relations and etc. So here in class 11th they have included a book, that is political theory, because up to class 10th you have been studying some basic political phenomena relating to politics in India. You used to study about constitution, elections, and democracy, meaning of democracy, non-democratic country, democratic country, differences, good democracy, bad democracy. So these were the areas of understanding of political science or civics. But under political science now this is a new branch, political theory, where we will be studying certain theories. Theories here you can say basic concepts, ideas or thoughts. There are various ideas, concepts or thoughts of some popular scholars. पुराने scholars होते थे एरिस्टोटल, ठीक है, और जैसे कि सोक्रेट्स, और हमारे इंडिया का देखें तो गांधी जी हमारे हो गए, विवेकानंद हो गए. तो इनकी जो थॉट्स है, आइडियाज है रिलेटिंग टू पॉलिटिकल फिनोमिना, किसी ने फ्रीडम के ऊपर क्या बोला है, इक्वालिटी के ऊपर क्या बोला है, राइट्स के ऊपर क्या बोला है, ठीक है, डेमोक्रेसी कैसी, ट्रू डेमोक्रेसी कैसे होनी चाहिए. तो वी विल टॉक अबाउट दोस थ्योरीज जो कुछ स्कॉलर्स ने प्रेजेंट की हैं. तो बेसिकली अगर आपको क्या समझना है इस बुक में, अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आए थे, दिस इज अ ग्राउंड लेवल. अगर ये ग्राउंड लेवल है, okay, and you are studying about some political phenomena, and for example these political phenomena were relating to freedom. Suppose last time तो freedom के बारे में पढ़ा है, equality और justice, ठीक है. तो these were the political phenomena जो politics में बहुत important माने जाते हैं when we understand political system in our society. Democracy को हम कर सकते हैं, democracy, ठीक है. तो हम यही सब चीजें पढ़ते हुए थे. पर अब हमें क्या पढ़ना है, हमने किस लेवल तक जाना है, ग्राउंड लेवल से ऊपर. इट मींस हमने इसको ऊपर समझा है, बट व्हाट आर इट्स रूट्स, लाइक लोकल गवर्नमेंट. व्हेन वी वर स्टडीइंग दैट चैप्टर, अभी तक हमने क्या पढ़ा 1992 में, तो क्या पढ़ा हमने ग्राउंड के ऊपर एग्जैक्टली व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट. बट वी हैड ट्राई टू अंडरस्टैंड लोकल गवर्नमेंट कब से, एंशिएंट टाइम से, ड्यूरिंग द व्हेन वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश. तो हमने उसके रूट्स जानने की कोशिश की, कहां से शुरू हुआ, उसका नाम क्या होता था, ब्रिटिशर के अंदर कैसी लोकल गवर्नमेंट्स होती थी, उसमें क्या चेंजेस आए, फाइनली 1992 से क्या उसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो प्रेजेंट सिचुएशन में हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस वो आपने पढ़ लिया रूट के ऊपर, उसके रूट्स पढ़े. इन द सेम वे आपको फ्रीडम का अभी तक डेफिनेशन पता है, सबको इक्वालिटी पता है. मैं डेमोक्रेसी पूछूंगा तो बच्चों को ऑलमोस्ट सबको आइडिया होगा थोड़ा बहुत व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी. बट इन दिस बुक एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम एक पर्टिकुलर ब्रांच आपने सिलेक्ट कर लिए, आपने खुद सिलेक्ट किया ह्यूमैनिटीज. सो अब हमको उसको डिटेल में पढ़ना है. फर्स्ट पार्ट हमारा एक रेलेवेंस था जो भी आपने 10th तक का पढ़ा है, और दोस्तों बस हमने भी 3 चैप्टर पढ़े हैं. विल टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इनके बारे में और डिटेल में पता है आपको थोड़ा बहुत, उसको हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे. बट इस बुक में हम किसकी बात करेंगे, थ्योरीज की. फ्रीडम है तो कहाँ से इमर्ज हुआ है, कौन से स्कॉलर्स ने उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं. तो फ्रीडम आज हम जैसा देखते हैं वो ऐसा इस लेवल तक कैसे बना है. एक ही दिन में फ्रीडम की डेफिनेशन रिकॉग्नाइज नहीं होगी, एक ही दिन में डेमोक्रेसी का मीनिंग सबको समझ नहीं आ गया होगा. स्लोली उसने क्या किया होगा, एवोल्यूशन. हमने एवोल्यूशन की बात की थी जब हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ रहे थे कि स्लोली पास्ट से आज तक प्रेजेंट तक कैसे पहुंचा है. तो इन द सेम वे हम इन कुछ कंसेप्ट को जो इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिटिकल फिनोमिना, उनकी क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री, उन्हें रूट्स से पढ़ेंगे, उनके रूट्स जानने की कोशिश करेंगे. और इन रूट्स को पढ़ने के लिए हमें किसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे स्कॉलर्स के आइडियाज, थॉट्स और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे. तो बेसिकली हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स और थॉट्स और आइडियाज. तो कंसेप्ट, थॉट्स और आइडियाज पढ़ेंगे हम बेसिस ऑन दीज आइटम. मैंने एग्जांपल के लिए कुछ लिखे हैं, पर चैप्टर के अगर आप चैप्टर भी देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन. अगर आप हम ये समझ लेंगे इसमें कि हम ये चैप्टर्स क्यों पढ़ने वाले हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रीडम, इक्वालिटी,
जरूरत ही नहीं थी ये तो, आप लोग जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, पर हियर वी विल सी द रूट्स ऑफ दिस पॉलिटिकल फिनोमेना कि हम फ्रीडम क्यों पढ़ते हैं, इक्वालिटी का क्या मतलब है, सोशल जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, ऑल द सम चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम दिस सिलेबस बिकॉज़ ऑफ कोविड। अदरवाइज हमारा कंटेंट होता कि आपको नेशनलिज्म का ट्रू मीनिंग समझ आए, सेकुलरिज्म का ट्रू मीनिंग समझ आए, एंड पीस। तो इसकी क्या देखनी है, हमें जर्नी देखनी है, सब टर्म्स की क्या देखनी है, जर्नी कहां से शुरू हुई थी और आज इनकी रेलेवेंट डेफिनेशंस है क्या। आज हम बात करते हैं फ्रीडम का। व्हाट डज फ्रीडम मीन? फ्रीडम मींस कि हम कुछ भी करें, कैन आई हिट एनीवन इन द रोड पासिंग बाय, मेरे को फ्रीडम है, कर सकता हूं मैं, किसी का भी एक्सीडेंट कर, डजंट मैटर, ऐसा है फ्रीडम का मतलब ये है। तो हर वर्ड का क्या मीनिंग है विल अंडरस्टैंड इन दिस बुक। फ्रीडम का तो इसका तो मीनिंग सब लोग क्या सोचेंगे, कुछ भी करना, फ्री है हम। तो क्या होता है फ्रीडम का मतलब ये नहीं हम कुछ भी, हमें दूसरे की फ्रीडम को हर्ट नहीं करना है, हमारे अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए जब हम इनको एंजॉय कर रहे हैं पॉलिटिकल फिनोमेना को, उसकी रियल डेफिनेशन है क्या, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस बुक। फ्रीडम डजंट मीन कि आप अभी क्लास से उठो आप भाग जाओ कि हमें तो फ्रीडम है, क्योंकि फ्रीडम का तो ये नहीं है, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ने की एंड आई एम द अथॉरिटी, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी कुछ रूल्स को फॉलो करना है, मुझे भी कुछ रूल्स को फॉलो करना है। तो हम इक्वालिटी की भी बात कर सकते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, जस्टिस की बात करेंगे, बट देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स जो हमें फॉलो करना है, तो उनको समझने के लिए हमें कहां से शुरू करना पड़ेगा, रूट्स से। सो इन दिस बुक बेसिकली वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, ये तो मैंने आपको बता दिया। नाउ लाइक इन साइंस सब्जेक्ट, साइंस होता है और वी हैव रेड साइंस, सबने पढ़ा भी रिसेंटली अप टू क्लास 10, देयर इज प्रैक्टिकल आल्सो एंड थ्योरी आल्सो। इन साइंस प्रैक्टिकल थ्योरी सबको अच्छे से समझ आता है, बट जब हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की बात आती है तो थोड़ा सा अलग लगता है कि इसमें प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। प्रैक्टिकल क्या है, आवर करंट लाइफ, जो हमारी एवरीडे लाइफ है, वी आर एंजॉयिंग सम फंक्शंस ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस है, आप यहाँ पे बैठे हो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप इससे बाउंड हो, आप सब इक्वली यहाँ पे ट्रीट होते हो, किसी को स्कूल में कास्ट रिलीजन के बेस में एडमिशन लेने से मना किया किसी ने नहीं किया, मतलब बेसिस ऑन मार्क्स, फेयर कंपटीशन हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसके मार्क्स अच्छे आए उसके अकॉर्डिंग एडमिशंस हो जाते हैं। इक्वालिटी भी है, यहाँ पे जस्टिस भी है, किसी का इनजस्टिस नहीं होगा, कोई टीचर इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करेगा कि किसी बच्चे को लेकर उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है। इट डजंट मीन कोई काम करके नहीं आया, उसकी पिटाई कर दी तो उसकी इनजस्टिस हो रहा है, इट मींस उसने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जो और स्टूडेंट्स ने किया, तो वो पीछे है, बाकी सब आगे हैं। तो इस तरीके से हम बोलेंगे हमारी लाइफ में ये पॉलिटिकल फिनोमेना हर दिन अवेलेबल होते हैं, हम इनको एंजॉय करते हैं, पर हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि इनको हमने खुद अचीव नहीं किया है ना, अटेन किसने किया है, फ्रीडम फाइटर्स ने। अगर हम उस टाइम में होते यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज थी तो हमें तब रियल मीनिंग पता होता, फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है, इक्वालिटी का। जब हमें बहुत गंदी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता ब्रिटिशर्स के अंदर एज कम्पेयर टू द अदर पीपल, कास्ट के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता, तब हमें रियल मीनिंग पता चलता इक्वालिटी का। हमारे साथ डेली इनजस्टिस होती है, हमें यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिलती, राइट टू वोट नहीं मिलता, हमें गवर्नमेंट में हमारे किसी ओपिनियन को सुना नहीं जाता, हमें टोटली इग्नोर किया जाता, तो हमें फिर इनका रियल मीनिंग समझ होता। तो आज के टाइम में तो हमें नहीं है, हमें तो फॉर ग्रांटेड जस्ट बाय बर्थ हमने ऐसा ही एनवायरनमेंट देखा है कि ये तो क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है हमारे लिए, क्योंकि हमने खुद तो इसके लिए नहीं लड़ा है ना। तो इसको समझने के लिए हर एक स्टूडेंट को पता हो कि इनका रियल मीनिंग क्या है, इनके रियल डेफिनेशंस क्या है, और ये इनकी क्या मल्टी डायमेंशंस है। फ्रीडम का एक ही मीनिंग नहीं होता है, इक्वालिटी का एक ही मीनिंग नहीं होता, हम इस बुक में पढ़ेंगे कि इनकी मल्टी डायमेंशंस होते हैं, अलग अलग बहुत सारे रास्ते होते हैं समझने के लिए इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सबको। तो दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस बुक। सो द फर्स्ट चैप्टर इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द एंटायर बुक। जो भी हम एंटायर बुक में पढ़ने वाले हैं उसका क्या है, ये इंट्रोडक्शन है फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो मैं ये बता रहा था आपको, साइंस से प्रैक्टिकल होता है हमारा, तो आप लोग पहले थ्योरी पढ़ाती है मैम, उसके बाद आपको लैब में लेके जाते हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी लैब में, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। बट हियर अब क्या हो गया, यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल क्या है, हमारी रियल लाइफ, जो हमारी एवरीडे लाइफ है वो क्या है, हमारा प्रैक्टिकल है। तो हमें क्या पढ़ना है, जो प्रैक्टिकल लाइफ आज हम जी रहे हैं उसके पीछे की थ्योरी क्या थी। आज हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, आज हम इक्वालिटी एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप राइट टू वोट दे रहे हैं, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, तो हमें क्या पढ़ने है, इसकी थ्योरी कहाँ से आई है। ऐसे एक दिन में सपना तो नहीं आया होगा ना, फ्रीडम इमर्ज हो गया, इक्वालिटी इमर्ज हो गई, ये आइडियाज किनके थे और स्लोली कैसे इमर्ज हुए, एंड व्हाट वर द कांसेप्ट थॉट्स बिहाइंड दोस थ्योरीज, दैट वी विल स्टडी इन दिस पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपको समझना है जो आज हम लाइफ जी रहे हैं वो तो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, मतलब क्या है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तो हम पहले जी रहे हैं, साइंस होता है प्रैक्टिकल बाद में करते हैं, पर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम प्रैक्टिकल लाइफ तो आज हम जी रहे हैं, बट हमें क्या पढ़ना है, इस प्रैक्टिकल के पीछे की थ्योरी क्या है, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो तो इसके पीछे थ्योरी कहाँ से निकल के आए ये वर्ड, इसके रूट्स कहाँ से, कौन कौन से स्कॉलर्स ने फ्रीडम के बारे में क्या क्या कंसेप्ट्स या थॉट्स दिए हैं. इज द आइडिया क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस बुक? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ where they will explain you इसकी रूट्स कहाँ से इमर्ज हो रहे हैं, ये एज अ सब्जेक्ट कहाँ से इमर्ज हुआ है पॉलिटिकल थ्योरी. Human beings are unique in two respects. They possess reason and ability to reflect on their actions. हमेशा याद रखना, humans और species से as compared to animals हम कैसे अलग हैं. दो क्वालिटीज हमारे पास, एक है रीजन, हमेशा याद रखना, पहला क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में, हम कैसे अलग हैं अदर स्पीशीज से. अदर स्पीशीज मेनली हम एनिमल्स को मान लेते हैं, लिविंग बीइंग्स में तो एनिमल्स ही हैं. तो हमें उनमें फर्क क्या है, हमारे पास रीजन है, हमारा जो भी एक्शन है उसके पास हमारे क्या है, रीजन है. इफ आई एम हियर आई हैव अ रीजन, मैं यहाँ पे एक जॉब कर रहा हूँ, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मेरा शेड्यूल है, मुझे यहाँ पे आके क्लास लेनी थी. यू आर हियर, आपका भी एक रीजन है, जो पेरेंट्स आर सेंडिंग यू, आपको पढ़ना है, जो भी अदर रीजन. तो ह्यूमन जो भी करता है इट हैज अ रीजन. फॉर आवर एवरी एक्शन देयर इज अ रीजन. और जो हमारा रीजन होता है उस रीजन को हम बता सकते हैं थ्रू आवर लैंग्वेज. हमारे पास एक चीज और है, क्या है, कम्युनिकेट. मैं आप लोग से कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ बिकॉज वी हैव सर्टेन लैंग्वेज. हिंदी इंग्लिश हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, दैट इज अ लैंग्वेज. सो ह्यूमन की दो जो आपको क्वालिटीज याद रखनी है जो हमें अलग बनाती है किससे, अदर स्पीशीज से. अदर स्पीशीज में मोस्टली मैं एनिमल्स को ले रहा हूँ क्योंकि एज ए लिविंग बीइंग्स. सो उसमें दो चीजें जो हमें अलग बनाती है वो है हमारी लैंग्वेज एंड रीजन टू रिएक्ट. दैट आई एम रीडिंग. ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स या टू एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं, दो तरीके से हम अलग हैं. दे पोजेस रीजन एंड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन. रीजन होता है और जो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारे रिएक्शंस दिखते हैं. दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर. और जो भी हमारे रीजन से हम कम्युनिकेट करके बता पाते हैं एक दूसरे को, ठीक है. अनलाइक अदर स्पीशीज, जो कि अदर स्पीशीज नहीं कर पाती है. दे कैन एक्सप्रेस देयर इनरमोस्ट. हम ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने इनरमोस्ट थॉट्स एंड डिजायर्स. मेरी जो भी अभी थॉट्स है, जो मुझे लग रहा है मुझे आपको बताना चाहिए इस सब्जेक्ट के बारे में, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, तो जो भी अंदर मेरे अंदर थॉट्स और कंसेप्ट्स थे, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ आए थ्रू माय लैंग्वेज. अगर लैंग्वेज नहीं होती तो मेरे अंदर जो थॉट्स चल रही है रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट मैं आपको एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाता. मे बी मैं लिख पाता या मैं साइन लैंग्वेज करता, बट हम ह्यूमन से हमारे पास एक एडवांटेज है, क्या, कम्युनिकेशन के लिए क्या है हमारे पास, लैंग्वेज है. तो हमेशा याद रखना दो चीजें जो डिफरेंट बनाती हैं अदर स्पीशीज से ह्यूमन को. Unlike other species, they can express their innermost thoughts and desires. They can share their ideas, discuss what they consider to be good or desirable. हम अपने ideas को share कर सकते हैं. We can also share what is good for us, what is bad for us. So political theory, तो आज ये वाला पार्ट अच्छे से सुनना, सब otherwise आगे प्रॉब्लम होगी आपको. Political theory has its roots in these twin aspects of the human self. तो पॉलिटिकल थ्योरी यहीं से जनरेट हुआ है. जो ह्यूमन की दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, कि हमें हर चीज़ का रीजन होता है, एबिलिटी होती है हमें उस रीजन को रिस्पॉन्ड करने की, और हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज है. इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर ये सब्जेक्ट बेस्ड है पॉलिटिकल थ्योरी. देखिए कैसे, क्योंकि इट एनालाइजेस सर्टेन बेसिक क्वेश्चन. क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, बस क्वेश्चंस है, कुछ एनालाइज करते हैं. बेसिक क्वेश्चन सच एज हाउ कुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड. लाइक हमारे पास क्या हर रीजन होता है, हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जो कंसेप्ट्स आते हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. आपके पास कोई कंसेप्ट आ रहा है, आइडिया आ रहा है, थॉट आ रहा है, यू विल डिस्कस विद मी विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज. इन द सेम वे इन पॉलिटिकल थ्योरी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में बहुत सारे रिलेटेड टू सोसाइटी, कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, अगर सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए. क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं. तो रूट्स से अगर हम बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं सोसाइटी कैसी होनी चाहिए. अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और सोसाइटी अगर एक साथ किस तरीके से रह सकती है, कौन सा हमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज करना चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट का हेड कौन होना चाहिए, अगर प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनको इलेक्ट कैसे करें, कौन सा इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए. तो ये सारे क्वेश्चन देख रहे हो आप, रीजन है हमारे पास, क्योंकि हम सोच रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तो होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट को इलेक्ट कैसे करेंगे, उसका हेड है तो उसको कैसे इलेक्ट करेंगे, कौन हेड होना चाहिए, उसकी क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, क्या कैपेसिटीज होनी चाहिए. तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सेम आने से ह्यूमंस के पास आते हैं, हम थॉट्स करते हैं और लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं. तो पॉलिटिकल साइंस से भी थॉट्स आएंगे और वेरियस कांसेप्ट्स हम उन थॉट्स को एक्सप्लेन करेंगे. आई एम रीडिंग इट नाउ. पॉलिटिकल थ्योरी हैज इट्स रूट्स इन दीस ट्विन्स एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन सेल्फ. इट एनालाइजेस सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस सच एज हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज्ड, व्हाई डू वी नीड गवर्नमेंट, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ डज लॉ लिमिट्स आवर फ्रीडम, what does the state own its citizens, what do we owe each other as citizens.
तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, हम एक दूसरे सिटीजन के लिए क्या कर सकते हैं, वो मीन्स हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनके बहुत सारे आंसर्स आपको पता है क्योंकि हमने किस में पढ़ लिया है, वो प्रैक्टिकल क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 11th की भी आपकी जो हमने पहली बुक के 2-3 चैप्टर पढ़े, वो हमारा इस पॉलिटिकल थ्योरी का कौन सा पार्ट था, प्रैक्टिकल पार्ट था, जो रियल में एग्जिस्ट करता है। आप इलेक्शन सिस्टम पढ़ रहे हो जो रियल में एग्जिस्ट करता है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा जो रियल में आज एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर जो भी आर्टिकल्स प्रोविजंस हमने पढ़े, लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा, वो प्रैक्टिकल पार्ट है। पर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं इसमें, थ्योरी, हम बेस से आएंगे, रूट्स कहां से इमर्ज हुए हैं, ये आइडियाज थॉट्स। तो ये आइडियाज थॉट्स हम कैसे, थ्रू लैंग्वेज, थ्रू कांसेप्ट, थ्रू आइडियाज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ, अच्छा ये हो गया। तो पॉलिटिकल थ्योरी, नेक्स्ट पैराग्राफ इज पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम एग्जामिन करेंगे एंड विल कम अक्रॉस विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली, विल ट्राई टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जो बहुत बेसिक लग रहे हैं दिखने में, बट हम उनकी रूट्स तक जाएंगे। गवर्नमेंट ऐसे क्यों है, व्हाई वी आर हैविंग अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, एक रीजन ये दे सकते हैं हम। बहुत सारे हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बहुत चीजें फेस की हैं, तो हम चाहते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज, तभी हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो वेरियस हमारे रीजंस होंगे, तो हर क्वेश्चन के लिए हम रीजंस देंगे और उन रीजंस को हम कंसेप्ट और आइडियाज के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, और उन रीजंस और कंसेप्ट को देते हुए हम कुछ स्कॉलर्स के बारे में भी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पॉलिटिकल थ्योरी एग्जामिन्स क्वेश्चन, यहाँ तक किसको थोड़ा सा आइडिया आया कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस बुक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल, और हमेशा याद रखना हम इस बुक को क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरी। इसका प्रैक्टिकल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 6, 7, 8, 9 में आप डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लर्न की, रिंग क्या है, इक्वालिटी क्या है लिख दी, फंडामेंटल राइट्स क्या है लिख दी, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। हम अब थ्योरी पढ़ रहे हैं, साइंस में क्या होता है, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं। मैंने आपको साइंस के ऊपर टॉपिक पढ़ाई, केमिस्ट्री के रिएक्शंस बता दिए क्लास में, मैंने आपको पहले रिएक्शंस लिखा दिए, उसके बाद बोलूंगा ओके नाउ विल गो टू द लैब एंड विल डू द सेम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली इन द लैब, ठीक है। उसके बाद आप करके देखते हैं जो चीज आपने पढ़ी है। बट यहाँ पे उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम ऑलरेडी, हमें ऐसा एनवायरनमेंट बाय बर्थ मिलता है कि हम कैसी लाइफ में जीते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिटिकल फिनोमिनास, ठीक है, जो राइट्स आप ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग इंडिया में आए कि फंडामेंटल राइट्स आपको तब मिलेंगी पहले आप थ्योरी पढ़ के आओ, ऐसा तो नहीं है ना। आपने बर्थ ली, आपके लिए इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस सब एप्लीकेबल है, आपके पेरेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो अब हमें क्या पढ़ना है, उसका थ्योरी कहाँ से ये इमर्ज हुए हैं, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट की अप्रोच अलग है एज कंपेयर टू द साइंस। हर सब्जेक्ट की अप्रोच डिफरेंट होती है। साइंस में क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़ के फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि वो साइंस सब्जेक्ट है, उसकी अप्रोच अलग है। बट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमारी अप्रोच यहाँ पर डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। So political theory examines questions of this kind and systematically thinks about values that inform political life. Values such as, जब भी पॉलिटिकल लाइफ की वैल्यूज की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल वैल्यू वर्ड जब भी आएगा या पॉलिटिकल फिनोमिना जब भी वर्ड आएगा हमारे इसमें, तो इट मींस हम किन फिनोमिना, किन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। ये एग्जांपल नहीं है, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, जितने चैप्टर हैं आप उन सब के नाम भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज। इन्हीं वैल्यूज के ऊपर ही तो हमारी सोसाइटी बेस्ड है। अगर फ्रीडम हटा दो, जस्टिस हटा दो, इक्वालिटी हटा दो, सिटीजनशिप हटा दो, नेशनलिज्म हटा दो, तो हमारी कंट्री कहीं एग्जिस्ट करेगी, कहीं नहीं करेगी। तो ये क्या है, पॉलिटिकल वैल्यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर कंट्री एंड फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन। तो जब भी हम इसमें बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी की, तो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम एक पॉलिटिकल लाइफ की, मेरी पॉलिटिकल लाइफ इस कंट्री में कैसी होगी, तो मैं कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज की बात करूंगा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया में किसकी बात करूंगा, मेरे लिए क्या फ्रीडम है, किस टाइप की फ्रीडम है, कितनी फ्रीडम है, इक्वालिटी किस टाइप की इक्वालिटी है। ये टर्म्स है, इनके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। अब मैं ये तो नहीं लड़ सकता ना, एक मैं कंपनी के अंदर चल जाऊं कि इक्वालिटी है, मुझे भी ये जॉब चाहिए, इक्वालिटी इंडिया में, मैं उस जॉब के लिए लड़ूंगा कि मुझे भी आईएएस बना दो, क्योंकि इक्वालिटी है तो एवरीवन शुड बी इक्वल, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। बट इक्वालिटी को समझते हुए हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कुछ डायमेंशंस है। जैसे मैंने फ्रीडम का एग्जांपल दिया, फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, आई हैव द फ्रीडम, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे तो जेल में डाल देंगे ना, क्योंकि मैंने क्या किया है, फ्रीडम की जो रियल डेफिनेशन है, उसकी जो रियल ज्यूरिडिक्शन है, कितनी दूर का दायरा कितना है, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल वैल्यू का कुछ ना कुछ दायरा होगा। अगर मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूं तो उसका क्या होगा, ज्यूरिडिक्शन का मतलब ही क्या होता है, अगर मैं इस फ्रीडम की बात कर रहा हूं तो ये इसका दायरा है, अगर मैं इसके बाहर जाऊंगा तो इसका मतलब मैं वायलेट कर रहा हूं कुछ लॉज, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करूं, उसमें क्या होंगे, हमेशा कुछ रूल्स होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगे या कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे। कॉन्स्टेंट मतलब रुकावट, हमें पता होगा कि हमारे लिमिट
कहाँ तक है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको डिटेल में कहाँ समझ आएंगी, पॉलिटिकल थ्योरी में, क्योंकि अभी तक तो हम बेसिकली बस समझते थे फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है। अब हम वेरियस डायमेंशंस देखेंगे। तो जब भी पॉलिटिकल लाइफ की बात आएगी तो कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें हम क्या समझेंगे, मीनिंग समझेंगे, रियल मीनिंग क्या है इन टर्म्स का, इन वैल्यूज का। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दीज एंड अदर रिलेटेड कंसेप्ट्स। और फ्रीडम से रिलेटेड और भी जो चीजें होंगी फ्रीडम को समझने के लिए, उनको भी समझेंगे। फ्रीडम से रिलेटेड क्या वर्ड आ जाएगा, जैसे लिबर्टी, फ्रीडम से बहुत क्लोज है। तो हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रीडम एक्चुअली है क्या, जुरिडिक्शन कितना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है सिटीजन के लिए, उससे रिलेटेड लिबर्टी का मीनिंग क्या है, लिबर्टी फ्रीडम में डिफरेंस क्या है। तो ये हम पॉलिटिकल थ्योरी में समझने वाले हैं। इनका रियल मीनिंग, रियल डेफिनेशन आज के वर्ल्ड में क्या है। It explains the meaning and significance of these and other related concepts. It clarifies the existing definitions of the concept by focusing on some major political thinkers. हम आज देखेंगे कि इनकी जो रियल डेफिनेशन है आज वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। It also examines the extent to which freedom or equality are actually present. हम सोसाइटी में देखेंगे जो हमारी ये पॉलिटिकल वैल्यूज है हमारी सोसाइटी में कहाँ तक वर्किंग पोजीशन में है, कितने अच्छे से वर्क कर रही हैं या नहीं वर्क कर रही हैं, तो इनकी हम डिटेल्स भी देखेंगे, ठीक है। As we participate in every like आप स्कूल आ रहे हो, हम शॉप्स में जाते हैं, हम बस में ट्रेवल करते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, ट्रेन्स में ट्रेवल करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं, तो जो भी हमारी सोशल लाइफ है उन सोशल लाइफ में हम देखेंगे कि ये फंक्शनल है भी या नहीं है। फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप हम इनकी बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल है, अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी हम इसमें समझेंगे इस बुक में। At an advanced level, it looks at whether existing definitions are adequate and how existing institution, government, bureaucracy, and policy practice must be modified to become more democratic. अब हम क्या देखने वाले हैं इसमें, it is advanced level it look whether existing definitions, जो existing definitions हैं इनकी, आज वर्ल्ड में हम बोलते हैं फ्रीडम का जो मतलब है इक्वालिटी का, क्या वो करेक्ट है या नहीं है, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है ताकि वो वर्ल्ड और डेमोक्रेटिक बन पाए। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पर फ्रीडम का जो मीनिंग इंडिया में है क्या वो डेमोक्रेटिक है नेचर में, अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है उसमें और ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत है, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो सके। तो इट मीन्स हम इसमें क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज है ये ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है सोसाइटी में या नहीं हो रही है, क्या इनमें कुछ चेंज करने की जरूरत है ताकि और डेमोक्रेटिक हो सके अपने नेचर में, इस टाइप से, ठीक है। The objective of political theory is to train, और एक और चीज जो मैंने आपको इतना बताया क्योंकि अभी तक आप जूनियर क्लासेस से पढ़ के आए थे, इक्वालिटी, फ्रीडम, तो बहुत रिजर्व था आपका नॉलेज। इसमें क्या होगा, वेरियस डायमेंशंस देखोगे आप हर एक पॉलिटिकल वैल्यू की, तो इससे क्या होगा, हम सिटीजन्स को ट्रेन, मैं आपको बता रहा हूँ आप किसी और को बताओगे, तो इस तरीके से जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके अंदर क्या आएगी, अवेयरनेस आएगी, और आप एक ट्रेंड सिटीजन बन जाओगे, आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे, आप चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करोगे कि किसी ने जो भी बोल दिया आपने एक्सेप्ट कर दिया। तो अभी मैंने बोला ना, ह्यूमन हैव द टेंडेंसी टू क्वेश्चन, रीजन एंड विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज वी एक्सप्लेन, ठीक है। तभी यहाँ पे देखिए लिखा है द ऑब्जेक्टिव, बेसिक एक और ऑब्जेक्टिव है इसका, ये एक ही नहीं है, मतलब एक लास्ट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप जो पढ़ रहे हो इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए ना कि आप इसे लाइफ में यूज ही नहीं कर रहे हो, ये आपकी लाइफ को बहुत इंप्रूव कर सकता है एज अ सिटीजन। मैं नहीं जानता अपनी लाइफ में क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ के अगर आपने ये कंसेप्ट को समझ लिया, आप एक अच्छे सिटीजन ऑफ इंडिया तो बन ही जाओगे। आपको पता होगा हमारी कंट्री किस मोड में है, किस फॉर्मेट को फॉलो करती है, स्ट्रक्चर हमारी कंट्री का क्या है, पॉलिटिकल वैल्यूज का रियल मीनिंग है क्या, वेरियस डायमेंशंस है क्या। एक आप अनपढ़ इंसान की तरह ये नहीं बोलोगे कि हमें इक्वालिटी है, हमें फ्रीडम है, आपको उसकी सारी डायमेंशंस पता होंगी, उसके आपको रियल डेफिनेशन पता होगी, आपको पता होगा उसे हम कहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, इसको हम और डेमोक्रेटिक बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। आप स्कूल कॉलेजेस में जाओगे, आप बस में ट्रैवल करोगे इधर उधर, तो आपको ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यूजफुल होंगी आपके लिए, आपको इतनी नॉलेज होगी। तभी लिखा लास्ट में द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजंस टू थिंक रैशनली। आप लोग रैशनली सोचने लगोगे, रीजनिंग करने लगोगे, क्वेश्चनिंग करने लगोगे हर कंसेप्ट के ऊपर, आप उसे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लोगे कि किसी ने कुछ बताया, मैंने यहाँ पे कुछ बोला आपने एक्सेप्ट कर लिया। आप चीज़ों में इंटरप्रेट करोगे, चीज़ों को इंटरप्रेट करना, जांच पड़ताल करोगे हर चीज़ की, उसे ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लोगे। यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चन। जब भी कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन आएगा आप रैशनली उसको सोचोगे, समझोगे, उसको रिलेट करोगे पॉलिटिकल थ्योरी से, कंसेप्ट से जो आपने पॉलिटिकल थ्योरी से पढ़े हैं। करेक्टली द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ अ टाइम, तो हमारे टाइम में जो भी पॉलिटिकल चेंजेस होने वाले हैं उसमें आप बहुत रैशनली सोच पाओगे, समझ पाओगे अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ा। अभी तो बस मैं एक चैप्टर बता रहा हूँ थ्योरी, तो अभी आपको इतना रेलेवेंट नहीं लग रहा होगा। जब आप इक्वालिटी को इसमें हम डिटेल में देख लेंगे
क्या डिफरेंट डायमेंशंस है इक्वालिटी की, कितनी टाइप ऑफ इक्वालिटीज होती हैं, फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, फ्रीडम के ऊपर कोई इश्यू हो जाए आपकी सोसाइटी में तो आपको क्लियर पता होगा फ्रीडम और लिबर्टी में क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टेंट्स एंड बैरियर कितने हैं फ्रीडम के, तो आपको इन अलग अलग चीज़ों के बारे में डिटेल नॉलेज मिलेगी इस बुक में। सो आप लाइफ में कुछ बनो ना बनो, एक अच्छे सिटीजन तो बन जाओगे अगर आप इस बुक को ढंग से पढ़ोगे। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लास 11 दिस इज अ कंसेप्ट, यहाँ से आपको समझ आएगा कि आपने ह्यूमैनिटीज ली है तो किस लेवल तक पढ़ाई होती है पॉलिटिकल साइंस की। जो अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है, एक टाइप से कंक्लूजन है, वट एवर यू हैव स्टडीड 6th 5th से अब तक 10th तक जो भी पढ़ा सेम टॉपिक्स है, कुछ बहुत नया तो नहीं था। फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एवरीथिंग यू हैव बीन स्टडीइंग, बस इसमें क्या थोड़ा सा हम एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड वे में पढ़ रहे हैं, बट दिस इज समथिंग कंप्लीटली न्यू कंसेप्ट फॉर यू, ये सब आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। इस वे से पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से आपने इन पॉलिटिकल वैल्यूज को कभी नहीं देखा होगा। फ्रीडम का ये भी मतलब हो सकता है, इक्वालिटी का ये भी मतलब हो सकता है, जस्टिस का ये, तो हमें इनके क्या पढ़ने रूट्स से समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ वेरियस थ्योरीज ऑफ द स्कॉलर्स। ठीक है, हम ऐसे हवा में बात तो नहीं कर सकते, ऑन द बेसिस ऑफ कुछ थ्योरीज बात कर सकते हैं ना, हमारे पास कुछ जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए कि किसी ने ऐसा बोला था, उसके ऊपर वर्क हुआ, उसमें चेंजेस आए, मॉडिफिकेशंस हुए, एंड आज हम फ्रीडम की डेफिनेशन देखते हैं इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो ये यहाँ से स्टोरी, इसकी जर्नी यहाँ से यहाँ तक कैसे आई, इसमें ये चेंजेस क्यों आते गए, ऑल दैट विल अंडरस्टैंड इन दिस बुक पॉलिटिकल थ्योरी। सो फ्रॉम टुमारो सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट we'll try to understand is what is politics. पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहला पार्ट हम क्या समझेंगे, पॉलिटिक्स क्या है, एंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, मतलब हम डिफरेंस बता पाएंगे पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थ्योरी में डिफरेंस क्या है इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में। बाकी ये जो मैंने बताया है डिफरेंशिएशन और डिटेल स्टडी, ये हम इंटायर बुक में करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, बिकॉज़ यू कैन सी द नेम ऑफ द चैप्टर्स, इक्वालिटी, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, दीस आर द नेम्स। तो एक एक पॉलिटिकल वैल्यू के ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे, क्या होती है वो पॉलिटिकल वैल्यूज या पॉलिटिकल फिनोमिनास। तो विल सी द वेरियस डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल फिनोमिनास। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल टॉक पॉलिटिक्स रियल सेंस में मीनिंग क्या है, अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, आई विल टेल यू टुमारो। ओके, अभी फिर मैं दूसरी डायरेक्शन में चले जाऊंगा।